So you can use Mathematica and calculus also, and different functions for your calculus is there. First is your limit. So there is a limit function named by limit itself, capital L, and the syntax for that one is limit. You have to put expression here and you have to give your limit here, x tending to some point. So this will find out the limit value for your expression whenever you are approaching some point x naught. And also you have direction also. For example, you want to find out the left hand limit or right hand limit, then you can do that also. For that you need to add direction of comma. That means you have points here, x tends to x naught, and the comma after that you put direction. And if you will put direction 1, that it will go to the left hand limit, and if it is a -1, it will go to the right hand limit. For +1, that is a left hand. For -1, that is your right hand limit. And you can also find out the direct limit. That is the same formula, that is for limit. So you can put function here, and the x tends to x naught. So if you want to find out the traditional form, if you want to write it like this, so you can add this statement here, 2 times / then traditional form, and you will execute it, then you will come to the limit, right? So I have executed one command in Mathematica, log 12. Remember that? So that's why it's coming this one. So what we need to do, you have to clear F. So like this one. So whenever you get some type of error, so that means you have worked before for the same name of functions or variables. So जैसे कि मैं आपको समझा रहा था ना मॉड्यूल में, so मॉड्यूल में मैंने f और x को यूज किया था, that's why वो f और x की वैल्यू log में आपको दिखा रहा था. So for that you can clear first any function or any variable, whatever you are using for your expression, then you can execute it. So you remember this. If you want to find out the traditional form, then you can put 2 times / and then traditional form, T and F both are capital, the same rule. Also, here are some examples. Sin x by x, x tending to 0, you can execute it and you will find out the limit 1. Another example, sin x by x, then x tends to infinity. Okay, so remember this infinity word is also there. So if you want to find out limit at your infinity point, then you can find out with word infinity. I is capital, or minus infinity के लिए you can put minus just before your word. So execute it. Now you will get the value sin x by x and the x tending to infinity. Another one is your absolute value of x, that is mod of x by x. So here I am putting my expression first, then comma, then I am putting the point, and the third I am putting the direction also. So you can execute it and you will get your value, that is -1. So that is your left hand limit. So remember, left is for positive and the right is for negative. So this is the output for your right hand limit. Okay, another example is 1 by x extending to 0 with the direction 1, you will get -infinity. For direction -1, you will get infinity. Another example, exponential 1 by x, that means e to the power 1 by x extending to infinity, you will get the value 1. So you can do as many example for your limit, right? Okay, come to the another part. Another point is that you can design your sequence, and after that you can plot your sequence, and you can check whether it is converging or not. So by plotting, you can easily understand how the sequence is your converging, and what is the point for which your function or your sequence is approaching, right? So basically sequence is nothing but a function, but the domain is natural, right? Domain is natural numbers. That's why we call it a sequence. A function with the domain natural number is called a sequence. So let us define a function here first. The function is s, that is a sequence. 1 by n का suppose हमने एक sequence ले लिया है, then I can create the table for this sequence. Now you can understand table easily because yesterday we just discussed about table, that put function here and the put range. सो सीक्वेंस आपका तो इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर पर है, एन टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है. सो अगर आप इसका लिमिट चेक करना चाहते हैं तो आप लिमिट ऑलरेडी आप जानते हैं कि कहां पर अप्रोच कर रहा है ये. सो लिमिट 1 by n and you can put n tending to infinity,
लाइक दिस वन। तो आपको इसके लिमिट भी आप पहले चेक कर सकते हैं। सो लिमिट जो है आपका 1/n का 0 पर है। सो उसके बाद हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल मीन्स सीक्वेंस के टर्म्स को स्टोर कर रहे हैं। कितनी टर्म्स आप चाहते हैं? फॉर एग्जांपल कि आपने प्लॉट करना है, तो प्लॉट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पॉइंट्स को फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको देना पड़ेगा। देखिए, प्लॉटिंग आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पर आपका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज 1/n, राइट? इन्फिनिटी पर जाते हैं हम तो 0 का लिमिट को टेंड कर जाता है। बट जब आप इसको प्लॉट करके चेक करना चाहते हैं तो प्लॉट के लिए आपको फाइनाइट सेट ऑफ डेटा देना पड़ेगा। इट्स नॉट कि आप प्लॉट कर रहे हैं एसएन को अप टू इन्फिनिटी। सो ये रियल में भी पॉसिबल नहीं है, और आल्सो इन योर एनी कोडिंग और सीएस कंप्यूटर लेवल सिस्टम। सो उसके लिए आपने क्या करना है? पहले टेबल बना लीजिए एसएन की, और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स आप पॉइंट्स आप डाल दीजिए, तो आपका एक फाइनाइट नंबर सेट आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 100 लिखा है, सो 100 ये पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे पास। 1, 1/2, 1/3, 1/4 लाइक दिस वन। ये सारे पॉइंट्स हमारे एक टेबल में स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद तो ये एक पूरा लिस्ट आ गया है, इसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ। और लिस्ट को प्लॉट करने के लिए आपको पता है कि आपने लिस्ट प्लॉट का यूज करना होता है, राइट? देखिए, अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं तो वैसे वैसे आपको जो हमने पीछे फंक्शन सीखे हैं, टेबल सीखा है, लिस्ट प्लॉट सीखा है, तो यहाँ पर वो यूज होगा। सो कैसे प्लॉट करना? बिकॉज टेबल इज ए लिस्ट, राइट? रिमेंबर, टेबल इज ए लिस्ट, दैट्स व्हाई द लिस्ट प्लॉट इज नीडेड। सो आपको इजीली समझ में आ जाता है कि लिस्ट प्लॉट हमें क्यों चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हम मेरे पास सीक्वेंस का एक लिस्ट आता है। और ये आपका देखिए अब, सो ग्राफिकली वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट आवर पॉइंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एज वी आर मूविंग 1/n, n is your moving to 100. So you can see that it is going like this one. If I'm putting here 1000 points like this one, now you can see that this is approaching to 0, right? You can easily understand. So teaching purpose के लिए आप प्लॉटिंग के थ्रू स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं कि किस तरह से हम हमारा जो सीक्वेंस है वो कहाँ पर अप्रोच कर रहा है और किस तरफ की वो टेंड कर रहा है। सो दैट इज द वे ऑफ डूइंग विद योर सीक्वेंस एंड प्लॉटिंग। Another example you can pick here, that is -1 to the power n by n, and you are creating one table and then the points are 1 to 100. So list plot मैंने किया, तो अगर आप लिस्ट प्लॉट करके देखें तो एक पॉइंट इसका इधर आ रहा है, एक पॉइंट उसका उधर जा रहा है, राइट? ऑसिलेशन हो रहा है ये। देखिए, इस जगह पर जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक की जगह पर ये वाला पॉइंट ऊपर है, ऊपर वाले की ब्लैंक के बीच का जो स्पेस है उसमें ही नीचे वाला पॉइंट है। सो यानी कि एक पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट नीचे, फिर ऊपर नीचे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। यस, ऑसिलेशन हो रहा है, एक बार वो प्लस की साइड पर जा रहा है, एक बार वो माइनस की साइड पर आ रहा है। सो इस तरह की सीक्वेंसेस हम वो भी चेक कर सकते हैं ग्राफिकली, दैट हाउ वी आर मूविंग टू अवर सीक्वेंस पॉइंट्स। ओके, कम टू द अनदर एग्जांपल। Here is one example. Okay, I think ये फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस किया था, फिबोनाची सीक्वेंस का एक फॉर्मूला है। So the first two terms are 1, and then you can put your function n, that is function definition, right? Underscore is here and the delayed set delayed operator is there. Function of n minus 1 plus function of n minus 2. You can table 15. सो फिबोनाची सीक्वेंस में अगर आप यहाँ पे ज्यादा नंबर डाल देंगे तो ये आपका मैथमेटिका बहुत टाइम तक रन होगा। उसका रीजन है क्योंकि आप यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, फंक्शन एफ एन के अंदर दो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो मैथमेटिका क्या करेगा? फंक्शन के अंदर को सोल्व करने बैठ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा फिबोनाची सीक्वेंस जब आप ये वाला एग्जांपल यूज कर रहे हो तो इसको बहुत ज्यादा मत बढ़ा दीजिएगा कि 100 और 200 पर चले जाएं सीधा। सिर्फ ये समझने के लिए है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा 20 और 25 तक चेक कर लेना, अदरवाइज मैथमेटिका रन करता रहेगा। वो रन करने का रीजन है कि फंक्शन के अंदर दो फंक्शन को कॉल किया गया है। सो वो फंक्शन के अंदर ऐसे ढूंढने लगेगा। मान लीजिए यू वांट टू फाइंड आउट F25, राइट? फॉर F25 इट विल कॉल F24 एंड F23। फॉर F24 इट विल कॉल, कितने फंक्शंस आएंगे उसके अंदर? हर एक के बाद दो 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 आ रहा है, तो 2 टू द पावर की फॉर्म में चलेगा ये। तो इतने सारे फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा मैथमेटिका को, इसलिए वो हैंग हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? कभी कभी आपका कोड भी आपको समझ जा देता है कि आपको कितना तक रन करके चेक करना है। तो कभी भी इसको बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए जब इस तरह के फंक्शन की कॉलिंग आपको बहुत ज्यादा हो, या फिर आपके पास टाइम है कि आप मैथमेटिका को रन करके छोड़ दीजिए, तो हो सकता है कि कुछ मिनट के बाद आपको आंसर कर दें। सो कोशिश करिएगा ही। तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में रख रहा हूँ, 15 टर्म्स ही मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि 15 में ही देखिए 600 के लगभग में ही जा रहा है सीधा। सो बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा। या जैसे आप बढ़ेंगे, देखिए 20 डिजिट्स के लिए सीधा 3000 की तरफ को अप्रोच करने लगा है। सो आपके पास इस तरह से टेबल एक क्रिएट हो जाएगा फिबोनाची
टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। आप जिसको भी आप चाहते हैं इसको देखना, उसमें से आप ये सेमीकोलन हटा दीजिएगा जब भी आप हैंड ऑन सेशन करेंगे। सो यू कैन रिमूव दिस सेमीकोलन सो दैट यू कैन come out with your output. So you can see that the Fibonacci terms are 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, like this one. So you can do as you want, and you can just list plot. So you can check how your Fibonacci sequence term are moving like this one. तो exponential growth है क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ता जाएगा like this one. Another example is, okay, here is one sequence. The first term of the sequence is 3, and the rule is Sn is equal to 3 Sn minus 1 plus 1. तो इस तरह से आपने लिखना है आपके सीक्वेंस जो है, उसके बाद में आपने सीक्वेंस का टेबल क्रिएट करना है, सो दैट you will get one list, and after that just list plot. So 10 terms यहाँ पर हमारे पास है, so you can go for 20 also because only one function is calling in your Sn. So I can go easily 20. It will come to like this one. So you can see that 1.5 into 10 to the power 8. तो एकदम से बहुत हायर रेंज आपका मूव कर रहा है, इस तरह सीक्वेंस बढ़ने लगेगा like this one. So you can understand how your sequence term approaching and where we will get the convergence for a particular sequence. Okay, come to here. That is another one example, n plus 1 by n. The table you have to create first, Sn for 1 to 50. That means 50 term will occur. And the list plot, percentile means your previous output, this table, right? And you can add your plot range or axis label, whatever you want. You know already all the many options for plotting, and like this one. So axis label are nothing but A1 will up here, it will appear here, and the n will appear here. The plot range is 0 to 50, for x 0 to 50, for y 0.8 to 2, 0.8 to 2. Now I can see that my sequence is approaching to 1, right? The 1 is this one, and it is approaching to 1. So that is the convergence is for 1, convergent point. Okay, another example that for an, that is n plus 1 by 1, we have this one, and for example we have some epsilon, then we can find out m also. So convergence का जो concept में है, convergence का आपका अगर definition अगर आपको याद हो, कोई भी sequence अगर आप converge करते हैं, so that means the mod of Sn minus L should be less than epsilon for all n greater than equal to m. तो what is the meaning of that? That means m is, यहाँ पर अगर आप check करें तो जो n चल रहा है आपका, that is 1 2 3 4 5 6, that is your n, right? ये n चल रहा है, और फिर हम क्या करें, एप्सिलॉन ले रहे हैं. एप्सिलॉन दैट इज नथिंग बट ए डिस्टेंस, राइट? आपका डिस्टेंस है. जब भी आप मॉड फंक्शन यूज करते हैं, मॉड ऑफ समथिंग, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, नथिंग एल्स. मॉड को हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं, और मॉड को हम जब डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं तो हमारा फिर मीट्रिक स्पेस बन जाता है, कंप्लीट सब्जेक्ट, राइट? सो बेसिकली मॉड ऑफ Sn माइनस n, जब आप वो लिखते हैं मॉड का, राइट? मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ टेक्स्ट पे. मॉड ऑफ लाइक दिस वन, कि Sn माइनस L, इस तरह से आप कुछ लेते हैं, और लेस देन सपोज EPS कम एप्सिलॉन, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. सो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बेसिक सा है कि जब भी हमारा n बढ़ता चलेगा, n बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, और हर एक बढ़ते हुए n पर आप Sn माइनस L का डिस्टेंस चेक करोगे. सो L आपका लिमिट है, उसका जो भी आपका लिमिट है उसका डिस्टेंस 1 से Sn की जो टर्म आ रही है उसका डिफरेंस आप चेक कर रहे हैं. दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली डिस्टेंस. सो मॉड इज नथिंग बट, मैथमेटिक्स में मॉड जस्ट अ डिस्टेंस ऑलवेज. So in your real analysis, you know, matrix spaces, whatever you are using, that this is just a distance. और distance जब ये एप्सिलॉन से छोटी हो जाए, जब ये छोटी हो जाएगी तभी हम रुक जाएंगे n पर, और जिस जगह पर हम रुकेंगे n की, वो हमारा m कहलाता है. सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर सीक्वेंस कन्वर्जेंस. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिमिट हमारे क्या है, इसकी 1 है. तो 1 की तरफ देखिए, ये पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कम हो गया, और कम हुआ, और कम हुआ, कम होता चला गया. तो जब ये डिस्टेंस मेरा इतना छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन दैट इज 0.001, इतना छोटा डिस्टेंस बीच का हो जाएगा, तो मैं रुक जाऊंगा वहां पर, और जहां पर भी ये ट्रू कंडीशन लगेगी वो मेरा n कहलाएगा m. सो दैट इज द बेसिक द स्ट्रक्चर, राइट? सो यू कैन फाइंड आउट m आल्सो, कि मेरा वो m कहां पर रुकेगा. सो उसके लिए भी आप ये सब रन कर सकते हैं. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. सो ओके, आपने सीक्वेंस लिया, आप पहले सब बता देंगे. यहाँ पर L आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आप M निकालना चाहते हैं, और अगर आप L निकालना चाहते हैं तो आपको पता है L के लिए क्या करना है, राइट? L के लिए आपने नथिंग, आपने सिर्फ लिमिट यूज करना है. लिमिट फंक्शन आपके पास ऑलरेडी है, कैपिटल क्यों नहीं कर रहा है? ओके, डन. लिमिट
for a of n and you will put n tending to infinity. तो अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये यहाँ पर लिखना है 1। तो नहीं पता तो पहले आप लिमिट निकाल लीजिए, तो एल में स्टोर कर दीजिएगा उसको, तो वो आपका तब भी आंसर आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ सेमीकोलन हटा के चेक कर लेता हूँ, देखिए आ गया ना लिमिट 1, तो ये हमारे पास प्रिंट भी हो रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको लिमिट गिवन है, सो दैट्स ओके। अगर गिवन नहीं है देन यू कैन फाइंड आउट लिमिट फर्स्ट by using limit function up to infinity, and then you can use all the terms. So epsilon is your distance, that is the minimum distance, that is 0.001. m is your 1, that is our starting, right? n start कहाँ से हो रहा है? n start हो रहा है 1 से। so जो आपका बिल्कुल starting point है जहाँ पर n यहाँ पर है 1, so that is your m। तो m जो है आपका n के साथ मूव कर रहा है, n ही आपका m बनने वाला है लास्ट वाला। सो 1 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसको बढ़ते चले जाएंगे, और जहां पर भी वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, राइट। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन माइनस एल, और उसका मैंने नाम दे दिया है एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब उसका डिफरेंस, इसका मैंने अपना नाम बना दिया है और उसको मैं चेक कर सकता हूँ। ओके, सो फॉर डिफरेंट एम आई एम ट्राइंग इट लाइक दिस वन, देन यू विल प्रिंट m, और आपका ये सारा ये तो स्ट्रिंग है, ऐसा कैसे प्रिंट हो जाएगा। देन एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी क्या है, फॉर ऑल एन ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, और m की वैल्यू। सो आप इसको रन करेंगे देन यू विल कम टू नो दैट m इज इक्वल टू 1000 पे जाकर, यानी कि जब n 1000 तक पहुंच जाएगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो सो वी गॉट अवर आंसर m इज इक्वल टू 1000। इज इट क्लियर नाउ? बहुत ईजी है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है कि आपको इसका पहले लिमिट निकालिए और n को बढ़ाते चलिए। जब हमारा n बढ़ते 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 इस पॉइंट पर पहुंच जाए कि आपका जो कंडीशन है दैट इज मॉड ऑफ ए एन माइनस एल वो सेटिस्फाइड हो जाए, बस वहीं तक रुक जाइए, जहां पर वो रुका है वो पॉइंट n m ही कहलाता है। क्लियर है ये आपको चीजें? तो ये आपका आंसर है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ योर रियल एनालिसिस, और यू कैन कॉल इट एज इन कैलकुलस आल्सो। Okay, you can check the another example here. an is over 1 by root n. Okay, we have an that is tending to 0, that means limit. You can check limit first, that is यहाँ पर l हमारा 0 given है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। अगर आपको given नहीं है then you can put l is equal to limit of an and tends to infinity. You will get your answer as 0. Then epsilon is your 0.001, m is your 1 starting point, and the same rule you applied here and you will get answer for the same. Okay, the same example is here. The an that is nth root of n, that is n to the power 1 by n. Okay, अब जैसे मुझे ये लिखना है, अब इसके लिखने का तरीका आपको पैलेट से लेना पड़ेगा। तो आप पैलेट्स में जाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स असिस्टेंट, और उसके बाद में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको है, उसको आप क्लिक करके ये फॉर्मूला लिख देंगे। ओके, कम टू द रोल्स थ्योरम। You can use role theorems also to justify your queries. Let's say कि कोई भी आप इलस्ट्रेट करना चाहते हैं रोल्स थ्योरम को न्यूमेरिकली एंड ग्राफिकली फॉर द फंक्शन f of x is equal to x to the power 3 minus 4x on some interval that is -2 to 2. रोल्स थ्योरम आपका है जो स्टेट करता है that if a function is continuous on a closed interval a b and the derivative f dash exists at every point of the open interval a b such that your fa or fb is equal to 0, that means axis को कट कर रहा है वो a और b पर, then there exists at least one point c in a open interval ab such that you have the derivative on the c point and it is 0, means it is parallel to the your x-axis, right? So वो आप graphically represent कर सकते हैं when you are working in your Rolle's theorem. So graphically you can show that. How we will do that, you have to define function first and then you can check it is condition satisfied. The first condition is your f of a f of b should be equal to 0, the both term, that is Rolle's theorem. कुछ बुक्स में आपका ये 0 नहीं मिलेगा, कभी कभी कुछ जो इंडियन ऑथर बुक्स हैं उसमें ये 0 नहीं लगाते, वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी ले लेते हैं। तो ये थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर बुक, कि कुछ में यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं, वो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिखा देते हैं किसी भी लाइन के लिए, जहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट वहीं पर ही आ जाए, इस वे में। ओके, सो आई कैन चेक हियर एफ ऑफ ए is equal to f of b or not, or equal to 0, so it will check you it is true or not. So true q means it will check whether it is true or not, so I can run it. Okay, yes, it is true here. Now what we'll do, we will solve it.
So solve it means you have to solve your f dash of x. So basically you will get the points कि जो आपका zero है f dash of x यानी कि the derivative is zero at what points in the in your open interval what is given to you, that is -2 to 2. So open interval में आप चेक करेंगे f dash x is equal to 0, तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स निकल कर आएंगे, राइट। सो देखिए कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जब आपके पास सॉल्यूशन में इस तरह का लिस्ट आता है देन यू कैन फाइंड आउट द, यू कैन रिट्रीव द सॉल्यूशन। सो देखिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है x1, मैंने लिखा है सॉल्यूशन में मैंने इसको स्टोर किया है। सॉल्व करने के बाद न्यूमेरिकली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका आंसर हो सकता है रेशनल में आएगा आपका, आपके पास आंसर। तो रेशनल नंबर को आपने न्यूमेरिकली पॉइंट आउट करना है, दैट इज 0.1.1547 लाइक दिस वन, देन यू हैव टू पुट n outside. So I will store it in Sol. Then I will pick the first solution, that is my -1.1547. How I will do it? So I can write here the first list, first element, second part. First list, first element, second part. So that is your first list, first element, that is itself. तो कर्ली ब्रैकेट से यहाँ तक बोलें तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लिस्ट, इसके अंदर को बोलें दैट इज योर फर्स्ट एलिमेंट, और इसको बोलें तो दैट इज योर सेकंड पार्ट। Is it clear how we write 1 1 2? So that is first list, this one, then first element, this one, then the second part, this one. So you will come to this one. So it will be stored in your x1, that is -1.1547. Similarly here, that is our second list, that is was your first list, this one is your second list, first element and the second part. So that's why I'm writing 2 1 2. Is it clear? सो अभी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ रोल्स थ्योरम का मीनिंग। देखिए -2 से 2 तक आपका कर्व गया है, दैट इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं, दिस वन -1 point something here and the 1 point is here and the 2 lines are, this is your purple like purple color or this is your like yellow color. So that means 2 tangents आपको मिल गए हैं जिस पर आपका f dash is equal to 0 दे रहा है। So that is the graphically representation of your Rolle's theorem, how you can make it understand easily to students, also for yourself also, that what is the meaning of the Rolle's theorem and how we can execute our plotting। ठीक है, हमने सॉल्यूशन देखा। तो आप ट्रू क्यों वर्ड आप यूज करिए, ये मैं बार बार यूज करता हूँ जब भी मुझे कुछ चेक करना होता है, दैट f of a is equal to f of b or not, like this one, so it will come true। दैट मीन्स जो पहली कंडीशन है Rolle's theorem की, दैट इज कंडीशन इज दिस वन, राइट। f of a, f of b should be equal to 0 or both should be equal to। so ये मेरा चेक हो जाता है फर्स्ट कंडीशन, तो मेरा क्लियर हो गया कि रोल्स थ्योरम के लिए मैं नेक्स्ट में बढ़ सकता हूँ। ओके, कम टू द अनदर पॉइंट। ओके, यहाँ पर आपको आई थिंक चीजें क्लियर हो गई हैं। ग्राफिकली वी कैन शो दैट कि किस तरह से हमें टेंजेंट मिल रहे हैं और पॉइंट्स हमारे -1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर है और 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर है, और एफ फंक्शन की वैल्यू क्या है वो यहाँ पर आ गई हमारे पास। तो ये प्लॉट लेजेंड्स में आप इस तरह से लिख दीजिएगा। आपने प्लॉट लेजेंड एक्सप्रेशन यूज किया ना पहले, सो नाउ यू कैन पुट करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट में फंक्शन के पॉइंट्स और वैल्यू पर इस तरह से दे सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर था ये x1 x2 मैंने स्टोर कर लिया है, सो मैं यहाँ पर इतना ना लिख के यहाँ पर x1 भी लिख सकता हूँ नॉर्मली, x1, और ये पॉइंट मेरे पास है x2, सो आई कैन डू दैट आल्सो, दैट आंसर विल बी सेम, राइट। तो f ऑफ x1 पर पॉइंट वैल्यू आपकी 3 पॉइंट समथिंग हियर, that is 3 point something this value, and the -3.07 this is value here. So you can illustrate as many as examples you want. So another example is you have to justify the Rolle's theorem, and the function is x minus 3 to the power 4 into x minus 5 into the power 3, and you can check for the interval 3 to 5. So that is your first checking condition. Okay, that's true. Another one is you have to find out f dash x you will solve. Okay, then you will get one value. The domain should be clear. सो जिस भी इंटरवल में आप चाहते हैं ना, तो वहां पर वो जब भी आप ये इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो मैं साथ के साथ डोमेन भी जरूर रख रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे, ताकि जो जिसमें हम वर्क कर रहे हैं फंक्शन के लिए उसी में मैं चेक कर सकूं। सो इंटरवल मेरे पास 3 5 है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग एक्स रेंज इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5। और आपको एक साथ लिखना होता है तो आपको रूल पता है, या तो कोमा लगा के करली ब्रैकेट लगाइए या फिर एंड लगा दीजिए डायरेक्ट। सो दैट इज द रूल। ओके, फिर उसके बाद आप इसको प्लॉट कर लीजिए and you will get this one. So this is your f of x like this one, and this is your line here. So you have C point here, that is 4 point something, this one 4.14286 here, and you have the tangent at this point, and this is the parallel to your
x-axis. So that is your Rolle's theorem justified. Another is one example by Lagrange's mean value theorem. The statement for Lagrange's mean theorem state that if we have a continuous function on some closed interval AB and it is derivable in your open interval, then there exists a C in your open interval AB such that this condition should be satisfied. F of B minus F of A divided by B minus A should be equal to F dash of C. यानी कि वो टेंजेंट आपका एग्जिस्ट होना चाहिए. ये मीन वैल्यू थ्योरम में है. ओके, आप चेक कर सकते हैं इस एग्जांपल्स के लिए. एफ एक्स इज इक्वल टू आपका है एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड द इंटरवल इज 0 to 1/2. द सेम आई एम डूइंग हियर अगेन. ए वैल्यू इज 0, बी इज योर 1/2, दैट इज योर इंटरवल पॉइंट्स ए एंड बी. The function is here x x minus 1 x minus 2. I am solving it, right? You can solve directly or you can put n outside if we are getting some rational answer. So n solve will work. Okay, I just put it formula here. Now you can see that the same formula as my in theorem statement, that is f of b minus f of a divided by b minus a and f dash x is here. So how you will write that? You can divide. इसको लिखने का तरीका ये पैलेट से लिया गया है. आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं देन यूज पैरेंथेसिस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय पैरेंथेसिस बी माइनस ए. तो उस तरह से आपने लिखना है अगर आप ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखना चाहते हैं, राइट? मैं इसको रिमूव करके चेंज भी कर सकता हूँ. सो वो भी आप कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, बट करली आपका पैरेंथेसिस नेसेसरी हो जाएगा उस केस में. So this one should be divided by this one. So please always use parenthesis whenever you are working with the rationals, like this one. Okay, and the range is also there. That is x from A to B. You can solve that and you can retrieve the solution and you will get your answer and you can put it the line. Okay, line is your line equation, that is f of a plus f of b minus f by b minus a x minus a. So आप वो एक लाइन निकाल रहे हैं जिसके थ्रू हम उसको चेक करेंगे टेंजेंट आ रहा है हमारा नहीं आ रहा है. लाइन बेसिकली क्या होता है, आपका जो लैग्रेंज थ्योरम है, तो जहां से आपका पॉइंट स्टार्ट हुआ है ये कर्व आपका मूव करता हुआ यहाँ पर गया, राइट? तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की जो बीच की एक लाइन है, ये जो लाइन आती है इसके पैरेलल आपको एक पॉइंट सी पर टेंजेंट मिलेगा. ये बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम है, राइट? नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें, सो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट उससे एक लाइन पास थ्रू करिए, दैट इज योर ग्रीन कलर लाइन, और इसके पैरेलल आपको एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिस पर आपका जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी. सो ये बेसिकली है आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. तो आपको ये टेंजेंट निकालना है आपने और ये आपने लाइन निकालना है. तो लाइन आपको पता है, लाइन निकालने का फॉर्मूला, तो लाइन आपकी जा रही है दो पॉइंट से, ए और बी से. सो दिस पॉइंट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज योर एंडिंग पॉइंट. सो आप उसमें लाइन को बी और ए का फॉर्मूला लगा के लाइन निकाल सकते हैं. लाइन फॉर्मूला, टेंजेंट फॉर्मूला, दैट इज टेंजेंट फॉर्मूला y1 प्लस एफ डैश y1 डिवाइडेड इनटू x माइनस x1. सो जो नॉर्मल टेंजेंट फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिखा है और इसको टेंजेंट को फंक्शन बना दिया, लाइन को फंक्शन बना दिया, और मैं तीनों को चीज़ों को एक साथ प्लॉट कर रहा हूँ. टेंजेंट एक्स को भी प्लॉट कर रहा हूँ, लाइन एक्स को भी प्लॉट कर रहा हूँ, और जो मेरा फंक्शन है मेन उसको भी प्लॉट कर रहा हूँ फॉर द सेम रेंज 0 to 1/2. एक्सप्रेशन लीजेंड्स मैंने यूज किया है और मेरा ये कर्व आ गया है. सो नाउ आई कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट वन लाइन इज पैरेलल टू द स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंटिंग passing through some line. So that's the way to doing it. Okay, another is your Taylor series. You can do work with Taylor series, and for doing the series is series of function is there, series symbol is there, you can call it series here. Okay, तो टेलर सीरीज का आपका एक्सप्रेशन इस तरह का आता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ डैश एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, लाइक दिस वन. ये चलता रहता है और लास्ट में आपका ये रिमाइंडर भी रहता है. ओके, सो लेट्स से कि फाइंड टेलर सीरीज आपने निकालना है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन का e टू द पावर x के लिए, एंड यू वांट टू फाइंड आउट अराउंड सम पॉइंट, क्योंकि टेलर सीरीज किसी ना किसी पॉइंट्स के अराउंड मूव करती है आपको x माइनस ए नॉट पर, यहाँ पर जो भी आप निकालना चाहते हैं x नॉट पर, जैसे मूव कर रहा है x नॉट के पॉइंट्स पर. सो x इज इक्वल टू x नॉट दैट इज 0, और हम 10th ऑर्डर तक जाएंगे तो वो हम चेक कर सकते हैं टेलर सीरीज को, और फिर उसका प्लॉटिंग भी चेक कर सकते हैं कि जो आपका फंक्शन का प्लॉट है और जो टेलर सीरीज करके आपने जो निकाला है उसमें आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग. सो क्लियर कर दीजिए पहले, फिर फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया, दैट इज अवर फंक्शन इज e टू द पावर x. So that's why you will write exp exponential x. Now I will find out the series for the function up to 10. So the
command is series, so you can check how the syntax of series. Right, series and execute it. Okay, so you will get the syntax for the series here, and after that you can use your series, that is your function and your range. Okay, you can normalize your series. What is the meaning of normalize? When you will put series like this one. Okay, कर ये मैं हटा देता हूँ सेमीकोलन, फिर मैं आपको इसका आउटपुट एक बार दिखा देता हूँ. तो देखिए फर्स्ट में जब हम सीरीज को कॉल किया मैंने यहाँ पर अप टू 10 डिजिट, सो देखिए 1 से स्टार्ट करके यहाँ पर कांस्टेंट से स्टार्ट 10 x टू द पावर 10 तक गया है, साथ में आपको रिमाइंडर भी आ रहा है, राइट, दैट इज योर बिग ओ. आई होप आपको बिग ओ और स्मॉल ओ पता है. बिग और स्मॉल ओ ये आपके ऑर्डर के लिए यूज किए जाते हैं. कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज है, मैथमेटिक्स में शायद आप ये बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं. सो दैट इज बिग ओ. एक स्मॉल ओ भी आता है आपके ऑर्डर शो करने के लिए. सो बिग ओ बेसिकली फंक्शंस के कंपैरिजंस के लिए यूज किया जाता है कि अगर किसी का पावर फंक्शंस में है तो स्मॉल देन लेस देन, सो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो तब हम जी ऑफ एक्स को ऑर्डर ऑफ बोल देते हैं एक्स के लिए. तो वो रूल्स हैं, बिग ओ, स्मॉल ओ, बिग ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, ये टर्म अगर आप ढूंढेंगे नेट पर तो आपको मिल जाएगा. सो उसको आप समझ लीजिएगा अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है कि ये क्या होता है यहाँ पर ओ की फॉर्मेशन में. सो दैट इज योर बिग ओ. ओके, सो 10 टू द पावर तक यहाँ कर गया है, और तो उसके बाद में आपके बिग ओ ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है. ये आपका रिमाइंडर है, एक्स्ट्रा पार्ट. सो नॉर्मलाइज क्या करता है, नॉर्मल आपका ये वाला रिमाइंडर पार्ट को हटा देता है और आपका जो मेन टेलर सीरीज की टर्म्स है उसको रख लेता है. क्योंकि जब आप प्लॉट करेंगे तो आप यहीं तक प्लॉट कर सकते हैं, सिर्फ इस लास्ट टर्म तक. इसको आप प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि बिग ओ का दैट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन कि जो बाकी की टर्म्स हैं उसमें कुछ, क्योंकि 10 के बाद भी आपके पास टर्म्स एक्स टू द पावर 11 है, एक्स टू द पावर 12 है, लाइक दिस वन. सो दैट मींस यू आर स्टॉपिंग, यू आर कटिंग इट ऑफ, दैट इज कॉल्ड चॉपिंग, राइट. तो आप क्या कर रहे हैं, टेलर सीरीज को चॉप कर रहे हैं एक्स टू द पावर 10 तक. सो ये आपका आंसर आना चाहिए जिसको मैं प्लॉट करूंगा नीचे वाले को. तो इसको हम बोलते हैं normal representation. So you have to put normal of your series, so you will get this one and then you can plot it. तो फंक्शन को भी प्लॉट कर लीजिए और इस सीरीज को भी, नॉर्मल सीरीज को भी प्लॉट कर लीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा इस तरीके का आ जाएगा. तो दोनों देखिए, फंक्शन है आपका ब्लू, और जैसे जैसे आपका जो ये नॉर्मल फंक्शन है, जैसे जैसे टर्म्स बढ़ती जाएंगी ये मिलता चला जाएगा. मैं दिखा देता हूँ आपको. तो अभी मैंने कितना लिया, सिर्फ 10 तक लिया है. अगर मैं इसको 20 तक करूँ, सो टेलर सीरीज और अच्छे से सॉल्यूशन आपको देता है. ये देखिए अब आपको दिख ही नहीं रहा है, राइट, उसने पूरा ढक लिया है ब्लू को. तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो गया. जैसे जैसे टेलर सीरीज का जितना ज्यादा एक्सपेंशन आप सीरीज का करेंगे उतना ही ये आपके फंक्शन जो है उसके तरफ को टेंड करने लगेगा, तो कन्वर्जेंस बढ़ने लगेगी. यानी कि जो दो फंक्शन हमारे पास थे, एक फंक्शन और एक नॉर्मल, उन दोनों के लिए आपका जो है कन्वर्जेंस बढ़ने लग रहा है. सो देखिए पहले ही क्या था, दूर था ये इतना. सो जो इनके बीच की डिस्टेंस है पॉइंट्स की, दैट इज दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, इसको हम बोल देंगे एप्सिलॉन. कि जो एफ एक्स माइनस आपका एफ एक्स माइनस एस एन एक्स जो इसका मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. तो मैं कन्वर्जेंट बोलना स्टार्ट कर देता हूँ, राइट, द डिस्टेंस. तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है बहुत कम होता चला जाएगा. जैसे जैसे कम होता चला जाएगा, जब वैसे वैसे आपके पॉइंट्स ये बढ़ते चले जाएंगे, तो आपका टेलर सीरीज जो है वो आपका कन्वर्जेंस की फॉर्म में आ जाएगा कि हाँ कि भैया फंक्शन को कन्वर्ज कर रहा है, कि फंक्शन की तरफ बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंच रहा है, लाइक दिस वन. तो अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली हम करते हैं इसके लिए. अनदर एग्जांपल यू कैन डू, दैट इज f of x थर्ड रूट ऑफ 1 प्लस एक्स. सेम प्रोग्राम इज हियर, दैट ये सिर्फ दो प्रिंट कमांड है आपको सिर्फ शो करने के लिए कि लिखा हुआ इस तरह का आ जाए, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, इसलिए सिर्फ ये दो कमांड दी गई है. अदरवाइज प्लॉट इज देयर, फंक्शन एंड योर नॉर्मल फंक्शन, एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट इट एंड यू विल गेट योर आंसर लाइक दिस वन. ओके.